24/7 Teachers Training, a lesson-by-lesson tutorial for homogeneous teaching. We are an EdTech textbook publishers. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, Honorable Teacher. I welcome you on behalf of the SNOWMAN Publishers. This tutorial session is on Unit 4 of English Grade 2. The unit title is Arfa Kareem. Let's have a look at the students' learning outcomes. After completing this unit, students should be able to pronounce and match spoken words with the written words, articulate, recognize, and use some formulaic expressions to listen and respond to more commands. Identify title and table of contents of a book. Identify and match some pairs of describing words showing quality, size, and color. For example, soft hand, big, small, black, white. Identify and use words showing possession, for example, my, your, his, her, our, their, and its. Recognize that a sentence ends with some form of punctuation, that is, full stop, question mark, or exclamation mark. Fill in the missing information to complete a simple paragraph. Complete a story with the given words. Demonstrate common conventions and dynamics of oral interactions in group and take turns. Write a few sentences to describe a picture and a series of pictures. Before asking the children to open their books and after exchanging greetings with them, you will construct an introduction that is well related to the theme of the text. Whereas you should always keep trying to create and construct your own, the following introduction is suggested. Talk to the children with the help of the following questions. What is a computer? Honorable Teacher, ये सवाल बज़ाहिर आसान लगता है बच्चों के लिए. वो कंप्यूटर देखते भी हैं, देखते रहे हैं, उस पे काम भी हो सकता है वो कर चुके हों, लेकिन इसको डिफाइन करना इस लेवल के बच्चों के लिए ज़रा मुश्किल काम होगा. उनके जवाब का इंतज़ार करने के बाद आप अपनी तरफ से जवाब दे सकते हैं. An electronic machine working on information, data, etc. यानी कंप्यूटर एक ऐसी मशीन है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन, जो मालूमात को महफूज रखता और उन पर काम करता है. Then the next question is, what is computer science? कंप्यूटर की डेफिनेशन के बाद ये बज़ाहिर कदरे आसान सवाल लगता है. Still, if you find the students struggling with the answer, you can give the answer from your own side. Study of computers and how they can be used. कंप्यूटर के बारे में पढ़ना कि वो काम कैसे करते हैं. The next question is, who is a computer scientist? You may find the children trying to gather the answer, may not be able to give you the correct answer, so you can give the answer from your own side. A person who studies computers and how they can be used. The last question in this regard is, can a child also be a computer scientist? बच्चों की अंडरस्टैंडिंग तो आमतौर पर यही होगी ना कि कंप्यूटर साइंटिस्ट तो किसी बड़े को होना चाहिए. वो शायद ये सोचते होंगे कि एक बच्चा कैसे साइंटिस्ट बन सकता है. But then you can give them the answer.
Yes, with interest and hard work. यानी हाँ, बन सकता है एक बच्चा भी कंप्यूटर साइंटिस्ट, दिलचस्पी और मेहनत के साथ. Tell the children that they are going to read about a Pakistani child who was a computer scientist and became famous in the whole world. पूरी दुनिया में उसका नाम हो गया, जो बच्चा कंप्यूटर साइंटिस्ट था बड़ी छोटी उम्र में. And tell them that she was a girl. Read the text aloud to the children while they listen and read it silently along with you. I'm going to read it out for you. Arfa Kareem. Arfa Kareem Randhawa was born on 2nd February 1995 in Faisalabad, Pakistan. She was only 5 years old when she first saw a computer in her school. Her father granted her the wish and bought a computer for her. Arfa was a fast learner and she excelled at the institute. After a few months in the summer break in 2004, she passed the Microsoft certification exam and became the youngest ever Microsoft certified professional, that is MCP, just at the age of 9. Bill Gates, founder of Microsoft, requested Arfa and her parents to visit the Microsoft headquarters. Arfa had big dreams and ambitions, but unfortunately, she died in 2012 due to heart attack at the young age of 17. The government of Pakistan built a science and technology park in her name. It is called the Arfa Kareem Software Technology Park. Ask the children to take turns reading sections of the text, correct their pronunciations at appropriate timings, and drill them in pronouncing the words correctly. The following words would require special attention in terms of articulation. 5. ये लफ्ज़ ऑनरेबल टीचर मैंने इसलिए सिलेक्ट किया है कि एक टेंडेंसी होती है स्पेशली बच्चों में कि वो चूंकि आई है एफ के बाद तो वो 5 कह सकते हैं. Tell them it's not 5. The correct pronunciation of the word is 5. Learner, वही बात कि जिन बच्चों को नहीं मालूम पहले से तो वो अनजाने में LEA के बाद का जो R है उसको वो बोल देंगे, लर्नर कहेंगे. Tell them that this R is silent and the correct pronunciation of the word is learner. Excelled, ये जो EX से पहले आम तौर पर ज्यादातर वर्ड्स में EX से शुरू होने वाले जो वर्ड्स हैं उनमें E की आवाज E और X की आवाज मिलाकर X बोला जाएगा. मैं मिसाल के तौर पर आपको एक और आसान सा लफ्ज़ बताता हूँ, वो चूँकि ज़्यादा इस्तेमाल होता है टीचिंग लर्निंग में. The word is EXPLAIN. Now, usually the word is pronounced as explain. This is wrong. The sound will be the same like it's there in excelled. Ik sound से शुरू होगा ये word. Explain. It's not explain, it's explain. So this is excelled. Summer. जिन बच्चों को नहीं मालूम कि इसका आखिरी R almost silent है, वो समर बोल देंगे, यानी R को pronounce करेंगे. Whereas it is not to be pronounced clearly.
The word is summer. Summer. The next word is certification. अब इसमें जो कैच है इस वर्ड में वो ये है सिर्फ स्ट्रेस का. वैसे इसमें कोई मुश्किल नहीं है, सिंपल वर्ड है, बट इसमें जो प्राइमरी स्ट्रेस है वो CER के बाद जो T है उस पे है. मैं आपको गलत बोलकर भी बताता हूं और सही बोलकर भी बताता हूं. आप अगर स्ट्रेस को मिसप्लेस कर देंगे, गलत जगह रखेंगे, तो फिर लोग इसको C पर स्ट्रेस के साथ भी बोल देते हैं. जैसे वर्ड सर्टिफिकेट है तो सर्टिफिकेट में अगर आप C पर स्ट्रेस देंगे तो गलत हो जाएगा. इट इज नॉट सर्टिफिकेट, इट इज certificate. The stress is on T. Similarly, even in this word, the stress is on the T that is after CER. So the correct pronunciation of the word will be certification. Certification. Professional. देखिए ये जो PRO की साउंड है in many a word, जैसे मैंने आपको बिल्कुल शुरू में क्लास 1 के शुरू के जो ट्यूटोरियल्स थे उनमें बताया था कि बाकी सारे वर्ड्स तो बाद की बातें हैं, कम से कम हम लफ्ज़ प्रोनाउंसिएशन जो है उसका प्रोनाउंसिएशन तो ठीक रखें ना. तो ये जो PRO लिखा होता है तो लोग फिर थोड़ा सा मिसलीड हो जाते हैं कि वो इसको प्रोफेशनल पढ़ लें. ये गलत हो जाता है. Like it's there in pronunciation, this word too is pronounced as professional. प्र की साउंड है, प्रो की साउंड नहीं है. प्रोफेशनल, प्रोफेशनल. एम्बिशन, एम्बिशन, बी पर स्ट्रेस है. द नेक्स्ट वर्ड इज यूजुअली मिसप्रोनाउंस्ड. वैसे तो खैर जो मैं समझता हूँ कि ज्यादती करते हैं इस लफ्ज़ को बोलते हुए वो तो गवर्नमेंट भी पढ़ जाते हैं, बट ये जो N है, और हाँ जो ज़्यादा ही दुरुस्त बोलने की कोशिश करते हैं वो N को गायब कर देते हैं. करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इस लफ्ज़ का है गवर्नमेंट. R साइलेंट है, नहीं है R. गवर्नमेंट. कुछ लोग जो ज़्यादा इसको दुरुस्त बोलने की कोशिश में वो फिर N को भी गायब कर देते हैं, वो गवर्नमेंट बोल जाते हैं. सो इसको गौर से ऑनरेबल टीचर सुनिएगा और आप बच्चों को भी बताइएगा दैट द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन ऑफ द वर्ड इज गवर्नमेंट. गवर्नमेंट. पार्क, R इज साइलेंट. पार्क. पार्क गलत है, और बिल्कुल जो फिर अनपढ़ों वाले तरीके से बोलना है वो पार्क है. सो इट्स पार्क, पार्क. लेट्स कम टू ओरल कम्युनिकेशन नाउ. Ask the students to role play the dialogue. It's at page 41. SLO is number 9. Teacher. Good morning, Komal. Komal. Good morning, teacher. Teacher. Komal. Have you done your assignment which I gave you online? Komal. Yes, teacher. The assignment was simple, but I don't know how to submit online. Teacher. That's easy. You only have to take a picture and send the attached file. Komal. Oh, that's easy. Thank you, teacher. No problem. It's vocabulary building now. Explain the meanings of words that you think may be difficult for the children. Some words and the meanings are being given here. Old. ऑनरेबल टीचर, मैंने इससे पहले भी एक से ज़्यादा मरतबा रिक्वेस्ट की है, आप बच्चों को जब भी मौका मिले ज़रूर बताएं कि बच्चों एक लफ्ज़ के सिर्फ एक मानी नहीं होते, बाज़-औक़ात 8-8, 10-10 मानी भी होते हैं. डिपेंड करता है कि वो किस सेंस में इस्तेमाल हुआ है या वो किस शक्ल में इस्तेमाल हुआ है. शक्ल से मुराद मेरी है
कि वो एज वर्ब है, एज नाउन है, एज एडजेक्टिव है, एज प्रपोजिशन है, एज प्रोनाउन है, व्हाटएवर। तो अब ये देखें, द वेरी फर्स्ट वर्ड इज ओल्ड। अब इस ओल्ड के मानी हैं जिसके साथ years का तस्करा बहुत जरूरी हो जाता है। So and so is 10 years old. That means of age. की उम्र का या की उम्र की। और इसके अलावा ओल्ड के मानी है बूढ़ा। He is an old person. Granted him the wish. उसकी ख्वाहिश पूरी कर दी। Granted him the wish. Grant के मानी देना। Fast learner, कम वक्त में ज्यादा सीखने वाला, उसे फास्ट लर्नर कहेंगे। ये आप बच्चों को बताइएगा, लेकिन साथ ये भी बताइएगा कि इन इट्स अपोजिट वी यूज द वर्ड्स स्लो लर्नर, ज्यादा वक्त में कम सीखने वाला। एक्सेल, दूसरों से आगे निकल जाना। इंस्टीट्यूट, इदारा, लेकिन इस टेक्स्ट में ये स्कूल के लिए इस्तेमाल हुआ है। ऑल्दो नॉर्मली हम स्कूल के लिए लफ्ज़ इंस्टीट्यूट इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन स्कूल को हम स्कूल लिखते हैं, लेकिन बाज़-औक़ात हो भी जाता है, तो यहाँ स्कूल के लिए इस्तेमाल हुआ है। फाउंडर, अ पर्सन हु स्टार्ट्स एन ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन एट्सेट्रा। A person who founds, बुनियाद रखना, शुरू करने वाला, और इसको एक लफ्ज़ में कहते हैं बानी, यानी बुनियाद रखने वाला। पार्क, एन एरिया ऑफ लैंड। अब देखिए, ये लफ्ज़ पार्क से कौन सा बच्चा है जो वाकिफ़ नहीं है, लेकिन मैं जैसे आपसे गुजारिश किया करता हूँ बाज़ औक़ात कि सभी बच्चे पार्क से वाकिफ़ हैं, वो वहां जाते रहते हैं, लेकिन आप दो बातें बताएंगे। एक तो पार्क है ना जिसमें वो खेलने जाते हैं, वो भी पार्क की डेफिनेशन से कवर होता है। मैं जो बात आपसे करना चाहता हूं वो ये है कि वैसे तो पार्क से सब बच्चे वाकिफ हैं, लेकिन जब टाइम आता है इसको डिफाइन करने का, क्या आप कहेंगे अच्छा बताओ जी पार्क के मानी क्या है, तो फिर ऑनरेबल टीचर प्लीज कीप इट इन माइंड दैट इट्स द डिक्शनरी व्हिच कम्स टू आवर हेल्प। अब ये जो वर्ड्स हैं डेफिनेशन पार्क की, ये मैंने डिक्शनरी से लिए हैं ताकि कोई शक न रहे और हम तुक्के न लगाएं, गेस न करें, बिल्कुल करेक्ट डेफिनेशन लिख पाए। यूज्ड फॉर अ स्पेशल पर्पस, फॉर एग्जाम्पल सफारी पार्क, ambition, something you want to do or achieve very much, shadid khahish, arzu. Let's come to grammar now. It's adjective. Page is 44 and SLO number 4. इस पर बात करने से पहले ऑनरेबल टीचर आप बच्चों को इस लफ्ज़ का प्रोनाउंसिएशन ज़रूर दुरुस्त बताइएगा। इस वर्ड में डी साइलेंट है और इसको बोला जाएगा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव गलत होगा। सो यू विल डिफाइन एडजेक्टिव्स एज गिवन इन रीड मी विद द हेल्प ऑफ द बुक। Adjectives are words that describe nouns, for example, tall boy, etc. There are 3 degrees of adjectives: positive, comparative, and superlative. अब यहाँ फिर आप you'll explain what positive, comparative, and superlative degrees of adjectives mean. Positive degree किसी चीज़ की सिफत जाहिर करती है बगैर किसी और चीज़ का हवाले दिए। Comparative में मुकाबला है, ये किसी चीज़ की सिफत के ऊंचे दर्जे को जाहिर करती है जब इसी किस्म की दूसरी चीज़ से मुकाबला करना हो। इसमें फिर हम ER ऐड करते हैं, he is taller than me, Ali is smarter than Ahmed. And then superlative degree सबसे ऊपर, सबसे ऊंचे दर्जे को जाहिर करती है और इसमें एग्जाम्पल्स दी हुई हैं।
इसके साथ आप possessive adjectives की भी बात कर दें बच्चों के साथ, यानी my, your, his, her, its, our, whose वगैरह. Let's come to writing now. It's page 47, SLO 10. और इसमें talk to the students about the picture before they write about it. क्योंकि जो टास्क है वो ये है कि write a few lines using the given word bank. और साथ इजाफी तौर पर add punctuation marks like full stop, question mark and comma. Tell them the meanings of, हाँ, ये जो दो लफ्ज़ इसमें है, मेरा ख्याल था कि ये दो लफ्ज़ ही हैं जिनके मानी बच्चों को नहीं मालूम होंगे, या हो सकता है कुछ बच्चों ने देखे भी ना हो. इसमें एक सीसॉ है और एक स्नैक्स है. सीसॉ मीन्स वो जब झूला होता है तख्ते का, जिसके सिरों पर बैठकर ये खड़े होकर बच्चे ऊपर नीचे झूलते हैं. दैट इज कॉल्ड सीसॉ. और स्नैक्स आप बता सकते हैं कि ये जंक फूड में शामिल हैं, लेकिन स्नैक्स का मतलब ये होता है कि किसी भी दो खानों के दरमियान, यानी नाश्ते और दोपहर के खाने के दरमियान या दोपहर और रात के खाने के दरमियान किसी भी वक्त आप खाने की हल्की फुल्की चीज़ें जो लेते हैं, कोई चिप्स ले लिए, कोई फ्राइज ले लिए, कोई वगैरह वगैरह वगैरह, हल्की फुल्की चीज़ें, इनको कहते हैं स्नैक्स. Check the students' sentences and write your own sentences on the board too. बच्चों ने तो जो ज़ाहिर सेंटेंस लिखने हैं, लेकिन my request to you will be कि आप पहले से तैयार शुदा सेंटेंस, यानी आप लिख के अपने पास रखेंगे ताकि बच्चे अपने सेंटेंस लिख चुकें और आप उनके सेंटेंसेस को चेक कर लें, तो फिर आखिर में आप अपनी तरफ से ये सेंटेंस आप बोर्ड पर लिख कर बच्चों को कहें कि वो कॉपी कर लें. इसका फ़ायदा ये होगा कि वो कंपेयर कर सकेंगे कि हमने कैसे सेंटेंस लिखे और हमारे टीचर ने कैसे लिखे. Well, that is all for this tutorial. Honorable teacher, thank you and Allah Hafiz.